زمزم. السلام علیکم مفتی صاحب. یار یہ ایک بڑا گندا بندہ آپ کی براڈ پہ آ گیا, یہ مفتری مبشر. سو میں اجازت لے رہا ہوں, یہ بہت ہی گندا انسان ہے. وہ نہیں ویسے بتاتے تو جائیں, یہ واٹر وہ پانی وہی تو نہیں جو مرزا قادیانی کہتا تھا میں جلاش کا پانی ہوں. بہت مائی گندا فیشل آدمی ہے. دیکھیں یہ گند ہی بولے گا, نہیں مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں جلاش کا پانی ہوں. اور بھائی تو رسول کریم کا بندہ ہے نا, تو رسول کریم کا بندہ ہے نا, تو ہر وقت منی میں اور پوٹی پیشاب میں کیوں بڑا رہتا ہے؟ تو رسول کریم کا ماننے والا ہے نا, تو اتنا گندا کیوں ہے اتنا گندا اور چول انسان؟ تو تیرے منہ سے آج تک اچھی بات نہیں سنی. چل بھاگ جا یہاں سے, یا پھر میں جا رہا ہوں, دفعہ ہو جائے ادھروں, نہیں تو میں چلا جانا. ہاں ایڈا گندا بندہ ہے یار, رسول کریم کا مننا سید ہے اتنا گندا. ساحل ہے تصویر ذرا وڈی کرے آ جا ذرا. واٹر اپنی شکل دیکھیے آئینے میں, تم سے نا شکل نہیں دیکھی جاتی اپنی. چلے واٹر صاحب آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں ذرا. یہ شاتم ہے رسول کریم کے ماننے والا. تحفہ لے کے آیا ہوں, چپ کر کے سنیں تو صحیح کیا ہو گیا ہے. آپ کے پاس میں نے بھجوایا تھا جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے, وہ اگر آپ ان کو دکھا دیں ہمارے. یہ والی ایک ہے جو ختم نبوت فورم پر ہے, تجدید صداقت. جی 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 بالکل بالکل. یہ جو ایک بدنامی زمانہ ہے, کیا کہتے ہیں ان کو, مخالفت احمدیت مبشر شاہ صاحب جی, ان کا یہ فورم ہے, اور اس کے اوپر وہ اس کو رن کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کافی لمبی چوڑی اس کی تفصیل لکھی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی. کہتے ہیں اگر بات سے مراد بات یہ زبانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں اور آپ کے ہی سامنے موجود تھے. یہ عجیب یہ بات ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو نبی نہیں ہے, تو پھر بھی نبوت کی نفی کیوں نہیں ہوتی. آگے چل کر وہ لکھتے ہیں اگر بات سے مراد بات یہ زمانی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کی نفی نہیں ہوتی, کیونکہ حضور علیہ السلام ہی کے زمانے میں اور آپ ہی کے سامنے موجود ہے. باوجود یہ کہ آیت میں دونوں باتوں کی نفی کرنی مقصود ہے, اور لفظ لاکن کا بھی یہی تقاضا ہے. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام نبی تھے, مگر اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے علاوہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب دیکھیں انہوں نے خود ترجمہ کر دیا میرے علاوہ. ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں میرے بعد میرے بعد میرے بعد, لیکن یہاں پہ مبشر شاہ صاحب نے خود اس کا ترجمہ کر دیا کیونکہ میرے علاوہ. جی دوستو آپ نے سن لیا, یہ انصر رضا مربی صاحب ہیں جو کہ قادیانیوں کے مشنری مربی ہیں. اور آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پوری قادیانیت کے اندر اگر کوئی ان کے پاس ڈیبیٹر ہے یا مناظر ہے تو صرف یہ ایک بندہ ہے جس کو انصر رضا کہتے ہیں, اور یہ احمدیہ ریڈیو بھی چلاتے ہیں, احمدیہ ریڈیو کے اوپر بھی آتے ہیں, MTA چینل پر بھی آتے ہیں, اور قادیانیت کے اندر قادیانیوں کے اندر یہ بہت بڑا ایک نام ہے اور بہت مقام رکھتے ہیں, اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کے مد مقابل کوئی اور ایسا ڈیبیٹر ان کے پاس نہیں ہے کہ جو قادیانیت کا دفاع کر سکے اور مولویوں کو جناب جھوٹا ثابت کر سکے اور مولویوں کو گالیاں دے سکے. یہ وہی انصر رضا صاحب ہے جناب کہ کوئی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, جو پرانے ہمارے دوست ہیں ان کو پتا ہوگا. جناب ان کے ساتھ ڈیبیٹ شروع ہوئی میرے, اور پہلے ڈیبیٹ شروع ہوئی فیس بک کے اوپر. فیس بک سے یہ بھاگ گئے, بالکل بھاگ گئے, اور پھر سکائپ کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوئی, وہاں سے بھی بھاگ گئے, اور انہوں نے عاجز کو
पुराने खादम हाजत मुफ्ती मुबशर, इनको ब्लॉक कर दिए। ठीक है जी, फेसबुक से भी ब्लॉक, स्काइप से भी ब्लॉक। अब ये आगे व्हाट्सएप आ गया था उन दिनों, व्हाट्सएप पे आगे व्हाट्सएप के ऊपर डिबेट शुरू होती है, तो इन्होंने व्हाट्सएप से भी आजज को ब्लॉक कर दिया। ये 3 जगह हो गई हैं जनाब, ब्लॉक कर दिया। आगे बढ़ती है जनाब, इनका रेडियो था जो कि ये कैनेडा से रन करते थे, तो हमने क्या किया कि इनकी साथ वाली गली के अंदर हमने भी एक रेडियो खोल लिया। और एक दिन अंसर रजा साहब आते थे अपने अहमदिया रेडियो के ऊपर, अगले दिन हमारा प्रोग्राम होता था, तकरीबन 3 घंटे का प्रोग्राम था। और जनाब 2 साल तक तकरीबन वो मेरा रेडियो के ऊपर प्रोग्राम चला। अंसर रजा साहब वहां पर भी लाजवाब हो गए और शिकस्त खा ली इन्होंने, और जनाब इनके पास और कोई चारा नहीं था। इन्होंने वो गवर्नमेंट को कह के या जो भी इनके तल्लकवास थे वहां कैनेडा के अंदर थे, हमारा जो रेडियो था इन्होंने बंद करवा दिया, बैन करवा दिया, और हमारे रेडियो को जुर्माना भी करवाया। वजह उसकी ये थी कि ये मुफ्ती मुबशर आता है और ये जनाब हकायक बयान करता है और मिर्ज़े कादियानी की किताबें खोल खोल के बताता है, तो इस वजह से हमारी कादियानियत गंदी हो रही है और नंगी हो रही है, तो इनका रेडियो बंद कर दो। ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं। ये दौड़ के आ जाते हैं जनाब यूट्यूब चैनल के ऊपर, गालबन ये वाली चैनल है कि जिसके ऊपर अभी बैठे हुए हैं। वैसे तो इनके कई चैनल हैं, इनकी समझ तो आती कोई नहीं है, कई चोर दरवाजे इन्होंने खोले हुए हैं। अब ये इन्होंने डिबेट मेरे साथ शुरू की, वीडियो डिबेट, यानी एक वीडियो ये बनाते थे, फिर मैं इसका जवाब देता था, फिर जो मैं जवाब देता था, फिर ये वीडियो बनाते थे। तो वीडियो दर वीडियो वो एक अरसा तक ये खेल चलता रहा और ये आंख मचोली होती रही। अब हुआ ये कि इन्होंने वो वीडियो डिबेट भी बंद कर दी, और जनाब बिल्कुल जवाब ही जब कोई नहीं है तो फिर वीडियो आगे क्या चलनी। और इस वाक़े को हुए तकरीबन कोई 7 साल हो गए। 7 साल के बाद आज की डेट नोट कर लें जी दोस्तों, ये 2025 चल रहा है जी, जून का महीना है, ये डेट नोट कर लें। और ये सारे पिछले वाकयात मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये नई डिबेट अब शुरू होने जा रही है अंसर रजा साहब के साथ। मैंने इनकी ये वीडियो जो है, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया है कि वीडियो नहीं खेलनी, वीडियो नहीं खेलनी, आमने सामने आके बिल मुशाफा बात करो, मुकालमा करो, तो फिर लगे पता। वीडियो दाग देना, अब ये देखे आपने एक वीडियो बनाई, इधर से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका तो नहीं। तरीका ये है आमने सामने आके बात कीजिए, जो आपको प्रॉब्लम्स है, जो आपके सवालात है, आप आमने सामने आके बात करिए। आपको कोई डर है, कोई खौफ है, कोई खतरा है, बताइए। आप अपने घर में बैठे हैं, वहां के कैनेडा पे या जिधर भी बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं अपने घर में, एक सैटेलाइट के जरिए, एक सोशल मीडिया के जरिए, एक इंटरनेट के जरिए हम बात करेंगे, तो इसमें क्या मसला है? कोई आप मुनाजरा तय कीजिए, टाइम तय कीजिए, दिन तय कीजिए, शराइत अगर आपकी कोई है तो वो बता दें, हमें आपकी शराइत कबूल है। कोई 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट हम बोलते हैं, टोटल दुरानियां तय कर लेते हैं कि आधा घंटा गुफ्तगू होगी, 1 घंटा गुफ्तगू होगी, बस बात खत्म होती है। जो दलाइल आपके हैं आप पेश कीजिए, जो दलाइल हमारे हैं हम पेश करते हैं। अच्छा जनाब, अब ये जो वीडियो है, इसके अंदर इन्होंने जो कार्रवाई की है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिए चलता हूं, और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जा करके ये सारे आपको बताता हूं। आइए जरा स्क्रीन के ऊपर आइए।
جی دوستو یہ ہمارا ختم نبوت فورم دنیا کی عظیم ویب سائٹ، ختم نبوت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے یہ ہمارا ختم نبوت فورم ہے۔ اس کے اوپر یہ ایک مضمون لگا ہوا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں مرکز کے بعد انجمنے کے بعد تقابل دیان کے بعد قادیانیت کے بعد قادیانی شبہات اور ان کے جوابات۔ یہ اصل میں ایک کتاب ہے جو کہ کتاب پیش کی ہے ہمارے محمد ابوبکر صدیق بھائی نے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کسی اور کی ہے اور اس کو پیش جو کیا ہے فورم کے اندر وہ محمد ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک سمجھ لے کہ یہ ایک چیپٹر ہے تردید صداقت مرزا قادیانی، تحریف نمبر 7 اسمہ کا مصداق مرزا قادیانی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ انہوں نے ایک بات کی ہے، اچھا یہ بات اس قادیانی شبہات اور ان کے جوابات کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور یہ تحقیق جو لکھی ہے یہ بھی اسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب مربی صاحب نے یہ دجل بیانی کی ہے کہ یہ مفتی مبشر نے یہ کہا ہے، اور مفتی مبشر اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اور مفتی مبشر نے یہ لکھا ہے، اور مفتی مبشر یہ کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی دجل بیانی، اور لوگوں کو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور دجل بیانی کر رہے ہیں، اور سر عام کہ آپ کے سامنے ہے ایک چیز، اور اس کو یہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو مفتی مبشر کی طرح منسوب کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی مفتی مبشر نے تسلیم کر لیا ہے کہ بعد کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوائے، یہ دیکھیں میرے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لے کر کے انہوں نے وہ جناب وہ ادم مچائی ہے، دیکھو تسلیم کر لیا، مفتی مبشر نے تسلیم کر لیا، مفتی مبشر نے تسلیم کر لیا۔ او بھائی مفتی مبشر نے تو بڑا کچھ تسلیم کیا ہوا ہے، مفتی مبشر نے تو یہ بھی تسلیم کیا کہ مرزا قادیانی دجال ہے، کذاب ہے، مرزا قادیانی جھوٹا ہے، تو پھر اس کو بھی تسلیم کرو۔ اور بھائی مفتی مبشر نے تو یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ مفتی مبشر نے تو اس کو بھی تسلیم کیا ہے، تو اس کو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو انصر رضا صاحب، مفتی مبشر نے بڑا کچھ تسلیم کیا ہوا ہے، آپ آمنے سامنے آئیے، ہمت کریے، آمنا سامنا کیجئے، اور چلے میں اسی مضمون کے اوپر، اسی بات کے اوپر آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں۔ کوئی اور مضمون یا اور کوئی چیپٹر، کوئی اور چیز چھوڑ دیں، چلے اسی کے اوپر آ جائیں، بات کریں، آئیے اسی ایک مضمون کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہمت کریے، آمنا سامنا کیجئے، تشریف لائیے۔ اور یہ مضمون ابو بکر صاحب کا ہے، میرا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کل آپ نے جو ہے نا وہ وائن، ٹانک وائن کی جگہ وہ کوکو وائن شروع کر دی ہے جو مرزا جی پیا کرتے تھے۔ وائن اپنی تبدیل کرے، یہ کوکو وائن اور کولا وائن ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ کیا ہوا جب اس نے کوکو وائن پینی شروع کی تھی؟ تو یہ ہے اپنی وائن تبدیل کریے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کر لیا، تمام حقائق اور تمام معاملات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ انصر رضا صاحب کو یہاں پہ میں مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، مناظرے کی دعوت پیش کرتا ہوں، مناظرے کی ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈیبیٹ کی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اس کو مباحثے کا نام دے دیں، مناظرے کا نام دے دیں، مکالمے کا نام دے دیں، افہام و تفہیم کا نام دے دیں، کوئی سا بھی نام دے دیں، میں آمنے سامنے آ کے بات کرنے کی ان کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی ٹائم، آج کا ڈیٹ نوٹ کر لیں سارے دوست، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ انصر رضا صاحب کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو آگے مزید چلانا ہے کہ یہیں پر ہی ٹھپ ہو جائے گی یہ بات، پہلے جیسے ہوا تھا، یہ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، وقت بتائے گا جناب۔ جو دوست ابھی اس چینل پہ نئے تشریف لائے ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔
रब रख। अच्छा जी, ये हो गया। और अंसर रजा साहब का जवाब आगे। अंसर रजा साहब की ये वीडियो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। और ये और यहाँ पर ये कमेंट अभी मैंने जो किया था, इसके नीचे फिर अंसर रजा साहब ने कमेंट किया है। अच्छा, मैंने कमेंट किया है कि अंसर रजा साहब ने चूंकि एक अरसा बाद डायरेक्ट आजज को खिताब किया है, तो अब हम भी जवाब देंगे। बेहतर तो ये है कि वीडियो खेलने से बेहतर है कि अंसर रजा साहब आजज मुफ्ती मुबशर शाह से लाइव मुकालमा करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल जवाबी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह। अंसर रजा साहब कहते हैं, मुबशर शाह साहब, दूध का दूध और पानी का पानी तो कब का हो चुका है। आप अभी तक अपने पानी को दूध ही समझ रहे हैं, तो ऐसी गलत फहमी पालने वाले आप पहले और अकेले नहीं हैं। बहुत से गैर मुस्लिम सदियों से और गैर अहमदी 130 साल से यही समझ रहे हैं कि इनका गंदा पानी दरअसल दूध है। बटालवी, गोलड़वी, अमृतसरी, बुखारी से लेकर चनियोटी तक सब नकामो नामुराद मर गए, लेकिन अहमदिया मुस्लिम जमात को मिटा नहीं सके। यही नतीजा आप और दीगर मौजूदा मुखालिफिन का भी होगा इंशाल्लाह। तारीख से कुछ सबक सीख लें या अपने बड़ों पे लानत डालें कि वो अहमदिया मुस्लिम जमात का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब आप इनसे बढ़कर मर्दे मैदान साबित होंगे। अच्छा जी, फिर मैंने इनको रिप्लाई किया इसी के ऊपर कि मर्जी है आप जनाब की, वीडियो बन गई है, अब अपलोडिंग पर लगा दी है, कुछ देर तक इस वीडियो का जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह। अब एक और रिप्लाई मैं अभी करने लगा हूं जनाब, आपके बैठे बैठे। मुरब्बी अंसर रजा साहेब, मेरे चैनल पर आपकी इस वीडियो का जवाब अपलोड कर दिया गया है। आप को दावते मुनाजरा दी गई है। अब देखते हैं आप कब हमारी दावत को कबूल करते हैं। चले भाई, चल भाई, टोरो गल टोरो गल टुरनी चाहिए। चल यार, वीडियो बंद भी हो जा। अच्छा जी, साहिल भाई मौजूद है। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਚੀਕਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੰਬਰ 1194 ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ रिवायत लिखी, ये पीर मंजूर मोहम्मद साहब ने मौलवी अब्दुल रहीम से तहरीर फरमाया कि मुबारक अहमद बीमार थे तो उनके लिए डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि पोर्ट वाइन उनको मुहैया की जावे। मसीह कादियान के घर के इस हिस्से में रहता था जहाँ पर दुआओं की अलमारी थी। आबिद भाई म्यूट लगा लें। मैं मकान के उस हिस्से में रहता था जहाँ दुआओं की अलमारी थी। मैंने देखा मसीह कादियान तशरीफ लाए, उनके हाथ में पोर्ट वाइन की बोतल थी। उन्होंने बोतल अलमारी में रख दी और मुझे कहा, पीर जी पानी चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? कहा हाथ धोने हैं क्योंकि ये शराब की बोतल पकड़ी थी। ये तो अलमारी मिर्जे के घर के अंदर है और वो उसी अलमारी में से निकाल के ला रहा है, उसी अलमारी में वापस रख रहा है। रिवायत नंबर 929 सीरतुल मेहदी।
929 बयान किया मुझसे डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल ने कि हजूर मुफज़ल्ला चीज़ें हमेशा अपने संदूक में रखते थे और उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, मसलन कोनैन, एस्टन, फौलाद, अर्गट, कोला, मुरक्कबात, स्पिरिट अब आपको पता है अंग्रेजी बोलने वाले स्पिरिट किसको कहते हैं, इमोनिया, वाइन ऑफ कॉड ऑयल ये भी बड़ी महंगी शराब होती है, क्लोडीन, काकल पल, पोर्ट वाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, स्कॉटिश इमल्शन भी शराब है, और यूनानी अद्वियात में से मुश्क, अंबर, तरियाके इलाई जो उन्होंने खुद तैयार कर रखा था हैं। अभी और दिखाऊं मिर्जे के घर के अंदर से शराब, और कि अभी ये 2 जगहों से काफी उसके अपने बेटे ने बताया हुआ है, बाकी तो मैं बहुत जगहों से तुम्हें दिखा सकता हूँ जी। मुफ्ती साहब जारी रखो तुसी, बाकी जे हुण तुसी कहो कि मिर्जे की अच्छा जी, एक मिनट ये रूहानी अच्छा, खजाइन दे इरफान साहब विचों आए ਇਹ ने। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। अच्छा वो इरफान एक साहब आए ने दफा भी ना जिन्हें मिर्जा गल जी को करनी ना है। कत्ल की धमकी मिली तो मिर्जा जी ने कहा कि तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है, हजरत जी ने खुद सैंखिया खाना शुरू कर दिया कि तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मर जाऊंगा खुदकुशी कर। और अगर मिर्जे के अच्छा हाथ जी। से पढ़नी हो शराबों की लिस्टें तो रूहानी खजाइन जेन 3 पर चले जाना, पेज नंबर 367 अजाला हाम, उसमें खुद मिर्जा कादियानी ने ब्रांडी, शेरी, विस्की, रम, पोर्ट वाइन, टॉनिक वाइन, इन सब चीजों को शराब कहा हुआ है और कह रहा है अच्छा ये बड़े शर्म की बात है जी। सॉरी साहिल भाई। अच्छा फैदी भाई, अच्छा ये इरफान साहब आए हैं, इनके ये होता है कि इनके साथ ये कहते हैं मैं एक ही बंदे से बात करूंगा, कोई इरफान साहब सामने आ जाए। इरफान साहब आप सामने नहीं है। मुफ्ती साहब से इनकी बात बताएं। ये कहते हैं कि मुझसे एक ही बंदा बात करे आखिर तक, शुरू से आखिर तक, दरमियान में कोई और बंदा ना बोले। इरफान साहब जरा सामने आइए। हाँ, एक बंदा तो एक ही होना चाहिए। वो शायद पीछे गए हैं, मुझे लगता है वो लंबा देर पीछे जाएंगे तो यार फिर गिर जाएंगे। अच्छा चलो जब तक वो नहीं आते फैसल यार इनू ते घेरा पा जरा अंसर रज़न मुफ्ती साहब उन्हें ब्लॉक कीता है मैनू, मैं मुफ्ती अपनी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। हर एक नाल अधूरा रखिया है। मैं उन्हें मैसेज घलिया सी कि आपका मुनाजरा अधूरा है, सूरह आराफ की आयत 35 के ऊपर, कब उसको मुकम्मल करना है? तो उन्हें अगो मैंने ब्लॉक ही करता है। हेलो नवी सुन। अच्छा जी, इरफान साहब दे पिछे गए ने सेठी साहब आए ने, ते अगर मुफ्ती साहब या सेठी साहब आ गए, फैदी भाई ये ਤੁਹਾਡੇ सेठी ਕੋਲ साहब। टाइम सेठी साहब आ ते गए। कोई बंदा कोई नहीं, मैं दरमियान तो बोलूंगा भाई, मुफ्ती साहब करेंगे बात। दरमियान में कोई और बंदा नहीं बोलेगा, ठीक है? सेठी क्या साहब जी आ क्या हाल है क्योंकि- और सुनाए? गए। जी शुक्र है जनाब, और सुना तबीयत कैसी है? बेहतरीन है जनाब। जी अल्लाह का शुक्र है जी। जी क्या हुक्म है सरकार, आपने इधर आयन लाडन दी है, इधर बुलाया है, हुक्म करें। आप सेठी साहब अहमदी हैं? जी शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी मुसलमान हूँ। बल्ले भाई बल्ले। नाम क्या है वैसे आपका? नाम ऊपर लिखा हुआ आ नहीं रहा नाम, आप जानते हैं मुझे, भूल गए हो? नहीं मैं नहीं जानता, तो आप नाम बता देंगे तो कोई इसमें कोई मुजायका तो नहीं है? बट फैमिली को जानते हो, बट्टों को? जी जी हाँ जी, हमारे गुजराले में बड़े भट्ट हैं। जो आपके भाई के जनाजे पे आए थे? नहीं 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 नहीं, उसके भाई के जनाजे पे आप गए थे, हाँ ये मुझे याद है। किसके भाई के जनाजे पे? किसके भाई के जनाजे पे? चलो बोल बंदा ही टुर गए। अल्लाह अकबर यार, खा दिया दी अधेरे अंधे खोंदे रहे, मैं बड़ी दूर की सोची, पता नहीं किथों किथों गल्ला बना के लिया नहीं, कट के लिया ने, अल्लाह माफ करे। बट दा जना देते। अच्छा बल्ला मैं तुहानू दसां कि शायद पूरी जिंदगी दे विच किसे बट दा, किसे एक बट दा जनाजा भी अज तक मैं नहीं जे पढ़िया। असल च ओहदी वजह है
ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਟ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਲ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਭੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੁਅੰਮਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਵਾਟਰ ਆਫ ਜਲਾਸ਼। ਓਏ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਦਾ ਹੈ रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा 55 वही नाज़िल हुई मिर्जा जी दे उत्ते, अंता मिम माइना व हुम मिन फिशल, तू हमारे पानी में से है और वो लोग फिशल हैं, फिशल से है। सेम यही बात रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 71 के ऊपर भी है, अंता मिम माइना। और यही बात रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 385 के ऊपर भी है। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे मेरा खुदा जल्लाश कहता है कि व अंता मिम्मा इना, कि तू तो हमारे पानी से है। ते पानी तो आप समझते हैं ना, पानी। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा बेटा जो है वो मेरे पानी से है, मुफ्ती मुबशर के पानी से है। तो हर इंसान किसी अपने बाप के पानी से होता है, समझ आई कि नहीं? अब मिर्जा कादियानी कहता है मैं जो है जलाश का पानी हूं, तो ये वो ही वाटर तो नहीं? बताएं तो सही ना, कुछ तो बताइए वाटर साहब। अब कहना शुरू कर दो गालियां कर रहे हो, गालियां कर रहे हो। ये कौन सी, इसमें कौन सी गाली है? मैं तो पूछ रहा हूं। या तो ये कहो कि मिर्जा कादियानी जलाश का पानी नहीं है, वो खुद कहता है भाई, हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए, वो जलाश की मनी से है, जलाश के पानी से है, जलाश के मादा मनविया से है। तो आपने भी वाटर लिखा हुआ है, कोई वाटर बता दे कौन सा वाटर है। अब ये ना कह दीजिएगा ये मुफ्ती मुबशर का वाटर है। अल्लाहु अकबर, इन्हां दा पता भी कोई नहीं, जदों मर्जी मौकफ तब्दील कर लैन। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਦਾ ਅਬੂ ਦਾਰਸ। ओए वॉइस डबल पता नहीं मेरी तरफ हो रही सी। फैसल है, मैं माइक म्यूट करना वा, दोबारा बोलो। ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। नहीं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। वालेकुम। आप जो कह रहे हैं ना जलाश नहीं, ये जो वाटर है ना, ये हनीफ मसीह का वाटर है जी, ओ हनीफ बल्ले मसीह बल्ले का। बल्ले बल्ले बल्ले, तहकीकात आ गई है सामने हैं। अच्छा ये अबू दारस, मैं सिर्फ रवायत बता देता हूँ, सफा बता देता हूँ, बकाया पढ़ना आप लोगों ने खुद ही है। रूहानी खजाइन जिल्द 9 है, सफा 158 158 इतनी गंदी बात यहाँ पे, चूंकि खवातीन भी बैठी हैं तो वो फिर बड़ा ही गैर मुनासिब सा होगा। मैं कहता हूं आप वो बिल्लू प्रिंट फिल्में भूल जाएंगे, अल्लाह की कसम। जाए ये एक सफा पढ़ लें बस,
ऐसी गंदी कोई दुनिया की कोई फिल्म या कोई डाइजेस्ट या कोई बात ऐसी सुनी नहीं होगी आपने जितना गंद इस जगह लिखा हुआ है। हाँ जी। और ये बनते हैं सुल्तानुल कलम साहब, हैं सुल्तानुल कलम। ओहो बल्ले भाई बल्ले, ओ तेरियां सुल्तानुल कलमियां, ओए कलमियां। बंदा ला लितर ले ते तेनू पा लम्मे ले ते फिर तेनू दसे केड़ा सुल्तानुल कलम। मुफ्ती साहब, हाँ जी। ऐसा सुल्तानुल कलम जिन्हों लफज ये नहीं पता कि है वाहद है, जमा वे, मोनस है, मुज़क्कर है, मरकबे तौसीफी है या अज़ाफ़ी है, जिन्हों यह नहीं पता वो जड़ा वे वो सुल्तानुल कलम है। और मैं कहता हूँ ये इसी अबू दारस को वो क्या कहता है, अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं। वो जाहिले आजम, जाहिले मुतलक। ये बिल्कुल झूठ। मैं कहता हूँ दुनिया की किसी किताब से ये अबू दारस औरत की शर्म का साबित करने वाले कादियानी को मुंह मंगा इनाम देंगे। आओ इधर मुना कबूल करो। ये होता है सुल्तानुल कलम। वो जाहिलो, उसको पता ही कुछ नहीं है। वो अभी आपने जब मैं आया था तो आपने तज़किरा शुरू किया हुआ था कि तज़किरे की वो जहां पे कहते हैं मुझे इसका तर्जुमा नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने एक पूरी एक समझ ले डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। 100 से ज्यादा हवाला मेरे पास मौजूद है। मिर्जा कादियानी कहता है इस वही का तर्जुमा मुझे पता ही नहीं है क्या ये। और 100 के करीब हवाला मेरे पास वो वाला मौजूद है। मिर्जा कादियानी कहता है बड़ा सुरत इलाम हुआ है, बड़ा तेजी के साथ इलाम, कोई 5000 किलोमीटर फी घंटा दी स्पीड नाल ना कोलों दी लाम लंघे है। मैनू समझ नहीं आई कि बलिया की है। नहीं मुफ्ती साहब, आजकल हाइपरसोनिक का ज़माना है तो आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा तेज़ इलाम। नहीं ओ स्पीड ते शायद कोई नहीं, वो तो साइंस वाली स्पीड है ना। ओ भाई जी हजरत जी दे ओ मिठन लाल ते ओ टीची सी ओदी स्पीडां दे फिर खैराती सकीना उन्हां दियां स्पीडां तुहानू नहीं पता उस स्पीडां दा। हजरत जी दे फरिश्तियां दी स्पीड है सारी साइंस नू पिछे छड़ गई है। हैं कोई साइंस दी थ्योरी अजे तक इजाद ही नहीं हुई जो हजरत साहब दे फरिश्तियां दी स्पीडां सन। मुफ्ती साहब, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या आपको पता है कि फरिश्ते जो हैं वो फीमेल भी हैं या नहीं? आप इनको बेटे और बेटियां कह रहे हो मेरे कि फरिश्ते मेरी बेटी और बेटियां हैं, तो आपको पता भी है। और मिर्जा साहब सकीना नाम दी फरिश्ती ले आए। सकीना फरिश्ती। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मुबशर। वालेकुम सलाम बाजी जी। हाँ जी, कैसे ठीक हो? ईद मुबारक हो आप नु जी। हाँ जी ईद मुबारक। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸ ਬਾਜੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸ਼ਿਕਾਨੇ ਰਸੂਲ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਸ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਨੀਫ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਬਦ ਭਾਈ? रंग भाई तेरे रंग अबद का इश्तियारा के रंग वाला है। इश्तियारा दे रंग ने रंग तेरे कौन है हनीफ मसीह है? कौन है? रंग ने रूहानी गल्लां ने जी बाबा जी। ये ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ रूहानी गल्लां। आबद भाई ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਹਨੀਫ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰਨੀ।
ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਐ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕ 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 ਬਕ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। अच्छा मुफ्ती मुबशर मिर्जा कादियानी ने खुदा दा भी दावा कीता ना, तो ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ 5 ਖੁਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਯਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੇ ਯਲਾਸ਼, ਇੱਕ ਵੇ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਵੇ ਕਾਲੂ। ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਕੀ ਕਾਲਾ ਤੱਲੇ ਦਾ? नहीं दो अलग अलग ने, काला और कालू। अच्छा कालू। एक वे आजी एक वे हजरत वतर। हजरत की हजरत वितर। हाँ ए 5 खुदा ने कादियानी। ए हजरत वितर दा जेड़ा हवाला वे तज़किरा ओल्ड एडिशन सफा 155 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜੀ ਖੁਦਾ ਵੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾਨ ਜਿਲਦ 1 ਸਫਾ 663 ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਸਫਾ 203 और रब्बुना आज रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफा 262 और यलाश खुदा रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफा 203 जी। ਇਹ 5 खुदा ने ठीक है। और मुफ्ती साहब सायका भी दस दो ना, सायका भी खुदा का नाम है। नहीं सकीना मेरे ख्याल सायका नहीं। सायका नहीं आबिद, सायका भी खुदा का नाम नहीं आबिद मैनू हवाला नहीं जे पता, जरा अगर आंदा जे तो दस दियो। हवाला तो बगैर नहीं जी। तस्करा के अंदर है सायका भी खुदा का नाम है। सायका तुसी बैननामा हवाला है जे ते दस दियो। नहीं मैं सकीना दा सुनिया वा, तुसी शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर। सकीना मैं फरिश्ता या नहीं सिस्टर, सकीना फरिश्ती सी, सायका खुदा का नाम है। मैं अभी आपको हवाला भी दे देता हूँ। सही है। अच्छा एक मिनट ठहर जो फिर। हाँ जी वो चाहिए फिर। मैं तज़किरा खोल लीजिए, अपनी पटारी खोल ली। अच्छा सायका सीन नाल के स्वाद वाला सा सी स्वाद अलिफ ते अगे ऐन अगे काफ केड़ी जी? 2 नुक्ते अगे है जी, अगे है जी। अच्छा एक मिनट, हुणे ही लभ जांदा है जनाब जे होया ना, क्योंकि मैं अपना एक सर्च इंजन बनाया होया है ते उस सर्च इंजन च फिर वो लफ्ज़ असीं लिखने आ, वो सब कच्चा चट्ठा सामने आ जांदा है। सायका तो सकीना एंजल सी नहीं, वो सकीना ते फरिश्ती सी ना, ओ जेड़ा ना वो हवाला भी, चलो मैं सकीना फरिश्ती वाला हवाला भी दे दिया। लेडी फरिश्ता। अच्छा है, कोई हाल नहीं मिर्जादा ना। पता नहीं अजीबो गरीब इन्हां दे मामले ने। ए लो जी सकीना फरिश्ती है हयाते कुदसी जिल्द 2 ते सफा 46। ए सकीना फरिश्ती दा जिक्र उत्थे तुहानू मिल जाएगा। अच्छा ख्वाब में देखा कि एक सायका मगरब की तरफ से मेरे कान की तरफ चली आती है और उसके साथ कोई आवाज है और उसने कोई नुकसान किया है, बल्कि वो एक सितारा रोशन की तरह। छोटा सा सितारा नहीं, गालबन है नहीं होना।
मुफ्ती साहब मैं भी पीछे से ढूंढ के अभी ले आता हूँ मैं। हाँ जी, और ना मैनू यार, अच्छा मैं ही साइका हूं, इन्नी आना साइका। एक मिनट। अच्छा वो ताउन नु कह रहे हैं कि मैं ही साइका हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं पीछे जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ मैं साइका हूं और मैं रहमान हूं, साहिबे लुत्फ और बख्शिश। हाँ लब गया, वही लब गया। अच्छा अच्छा, दब गया। ए वे ए जनाब वही जे सन तुहानू मैं दसां, बिल्कुल लब गए ठीक। ए 1903 दी वही है भाई, 1903 दी वही है। अच्छा अच्छा, मैं हुण ना एदा तुहानू सफा दसना। 1903 अच्छा, ए तमाम लोगों सुन रखो। मिर्जे दा गंद ही इन्ना है, ओए होए। अच्छा, आबिद भाई केड़ा हवाला लबन गया? जी जी आबिद भाई जी जी, ए ना मैं भी बस पहुंच गया, करीब ही पहुंच। ए आ गया आ गया आ गया बस। असल च ना थोड़ा टाइम लगता है, चीज लभ जाती है, जी। लभ जाती है। ए लो जी, तज़किरा का ओल्ड एडिशन सफा 410। हाँ लभ गया भाई, लभ गया साइका। चलो अज एक होर खुदा दरियाफ्त हो गया है भाई, बिल्कुल ठीक है साइका। ए नवा लब गया। आ ए हुण 6 हो गए जी बाजी। जी सर मिल गया, मैं भी लेके आया हूँ। बिल्कुल जी, तज़किरा सफा 410। जी मैं रूहानी खजाइन में से भी लेके आया हूँ, मैं वो भी पेज लगा देता हूँ। बिल्कुल सही हो गया, रूहानी खजाइन से भी तो बल्कि चलो चंगा कीता जे ते दस छड़िया जे ते असी जेड़ा ना जी मैं बाबा भी जी। आई हाँ तो पूछा था, फिर वरना पता नहीं लगना। हाँ बिल्कुल जी, है साइका दा। बरकत जी होगी। जी बिल्कुल। जी ये रूहानी खजाइन का पेज भी लगा दिया है। इसकी हाँ, नींद रूहानी कर लेने हैं। और फिर दोबारा केड़ा केड़ा जे सफा ए हवाला लफ्ज छोटे ने भाई, थोड़ा जा बोल के दसो।
एक मिनट मैं फिर चेक कर लवां कि सफ़े का पेज का ना मुआबुर रहमान किताब है ना मिर्ज़ा साहब दी, वो तो सफ़ा जे जी मुआबुर ਉਹ रहमान। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਦਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक मिनट ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਜੇ ਨੇ। फैजी भाई नीचे लिख रहा है रूहानी खजाएं जिल्द 19 पेज 19 ਜਿਲਦ ਠੀਕ। या 19 पेज ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਬਰਕਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਲੋ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 421, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 11 ਸਫਾ 50। अच्छा, रूहानी खज़ान जिल्द 12 सफ़ा 7। रूहानी खज़ान जिल्द 15 सफ़ा 341। एक रूहानी खज़ान जिल्द 18 सफ़ा 575। ये तो वाह ही वाले लभ गए ने भाई। लेकिन ये मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 527। लेकिन मुफ्ती साहब ये तस्दीक कर दीजिएगा मैंने बात सही की थी। मेहनत बड़ी बेहतरीन तुहाडा है, बड़ी मेहरबानी हो गई कि इन्ना मवाद मिल गया। रूहानी खज़ान जिल्द 22 ते सफ़ा 56 और उत्थे ते वाज़े लिखा तब खुदा साइका की तरफ से, खुदा दा लफ्ज तक मौजूद है जिल्द 22 दे विच। बल्ले भाई बल्ले बल्ले ओए बल्ले, ये तो बड़ा कुछ लभ गए यार, कमाल ही हो गई। वो कहंदे ने ना फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले दे उत्ते एक इल्म वाला है। बल्ले भाई बल्ले देखो ना माशाल्लाह। मिर्जा बड़ा पढ़िया लिखिया सी है ना। नहीं ये अपने मुंडियां दी गल कर सही बात है, नहीं सही बात है मुफ्ती साहब। जब भी सिस्टर ने कहा ना कि वो सकीना तो मैं खुद पजल हो गया था कि कहीं मैंने गलत बात तो नहीं कर दी। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਲੈ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਵਾਵਾ ਮਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ। ਆਹ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਈ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ, ਉਹ 2-3 ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰੁਸ਼ਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਖਿਰਾਤੀ ਹੈ, ਟੀਚੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਸੱਜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਸੱਜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆ ਵਾਲਾ ਖੱਬਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, मुझे पता है। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਓ ਔਰ ਹਰਦਿਓ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਸਕੀਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ। अच्छा
अच्छा यार भाई आप लोग बैठो ते मैं इजाजत चाहांगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह ਤੁਹਾਡਾ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।